वो सारे जहां पर बरसेगा, हर झूठ वहां पर बरसेगा, हर कोई गिरा पर बरसेगा, हर सर्व समन पर बरसेगा, हर दस्त दमन पर बरसेगा, गुलाब चमन पर बरसेगा, भैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कस्बे तरफ पर खड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा। We are now live. या साथियों, जनता पार्लियामेंट कल से शुरू हो चुकी है और आज हम शिक्षा के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इस सत्र में शिक्षा पर चर्चा होगी और इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर शांता सिन्हा, फॉर्मर चेयरमैन एनसीपीसीआर करेंगी और इस सत्र में बहुत सारे हमारे विद्वान वक्ता अपनी बात रखेंगे और कुछ रिजोल्यूशंस भी हम लोग पारित करेंगे। तो मैं सबसे पहले शांता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सदन की कार्यवाही चलाने की इजाजत दें और अपने इनॉग्रल भाषण से इसकी शुरुआत करें। सभी को नमस्कार। द हाउस इज इन सेशन। सदन की कार्यवाही शुरू करी जाती है। We are meeting on as a Janta Parliament in very unusual times, and I think we should have met much earlier, especially due to the emergency that there is today due to the lockdown. Let me start by stating that all of us who have gathered here have faith in democracy in India. Otherwise, we wouldn't have conducted the Janta Parliament. Perhaps we have more faith in the system than the system has in itself. We're all here to listen to the voices of children, and we hope that the voice of children becomes the voice of the parliament and India's democracy. We are here to examine the status of 42% of India's population during lockdown and the nature of state action, especially with reference to right to education. I must say that violations of children's rights have occurred even during normal times, with hundreds and thousands of children who remain uncovered. Our country has a dubious distinction of having the largest number of malnourished children in the world. So we claim that we have 99% of children enrolled in schools. We have 62 million children in the 6 to 18 years who are not attending schools. This is what the new education policy has told us. Children have been exploited, sexually abused, trafficked, and left without protection. While this is the status of children, before COVID, I must say that during lockdown, this situation has got aggravated, and at multiple levels, it has grown bigger and bigger. Now, let me tell you, as all of you know, how we are witness at every step to the harm caused to children due to COVID. The lockdown has affected all ages of children, cutting across regions, communities, and especially among the poor, marginalized, Dalit, Adivasi, OBCs, and minority communities. The worst affected are children of daily wage earners and casual workers who have no work, livelihood, and earnings, having no reserves of food, with children going hungry and having barely one meal a day. We must think of all the stories that we've read in the newspapers about girls, about children with special needs, about children who walk miles and miles. In fact, we are witness to heart-wrenching stories of migrant workers with their infants and children, youth workers who
who were left without any option but to walk hundreds of kilometers, tired and thirsty, suffering from bodily pain, experiencing fatigue and exhaustion. They have just not been counted for and not part of any data, either during COVID or even before COVID. We are witness to how employers of children and the middlemen just abandoned children at workplaces and left them to their fate without food, shelter, and any form of protection. I often wonder where the Child Labor Protection and Regulation Act was, and why was it that these children were even in these sweatshops working like small machines. They should not have been there at all. They should have been enjoying their right to education. We are indeed witness to the failure of the state to guarantee right to education to all children. And as we see now during these times, many of them have joined the labor force. They have been street children. In fact, in many cities, in the cities that I am from, Hyderabad, we never saw street children, but now we see a lot of street children. We have hearing stories of children being trafficked, children being forced into child marriage, and how there have been more and more children with disabilities who are so vulnerable. I think this is totally unacceptable. Where is the sense of urgency? We are witness to the midday meal program coming to a knot in many states. It's delayed action in some states. There are half-hearted measures in some other states, as if children would not eat food every day of their lives. I must say that there are, of course, dedicated teachers, officers at the block and district levels, elected representatives of local bodies, gram panchayats. There have been exceptional cases of rescue operations in coordination with NGOs, but most good measures are often due to individual interest and not as systemic response. We have found that there has been much wanting in the way system responds to children's rights. And many of these have been reinforced. The iniquities have been reinforced due to lockdown. There has been uncertainty, insecurity, and we find that children are pushed to work. There have been videos that have come across where children are on cotton farms, chili farms, street vendors, construction sites. They're joining informal sector, home-based work. We have seen how children face so much risk. In spite of all this shocking news that comes every day, and those who are working on children's rights are aware of everything, there is a pretension that all is well about children in the country. That there has not been a single cohesive policy on children during the COVID times. There have not been any plans for preparing schools and its infrastructure. There have not been any plans for visualizing what school would be like once the lockdown is over. There has not been any message about reconstructing the sanitation work, the water works, the blackboards, the boundary walls, electricity. There has not been any assurance to children that the government cares for it, that it will put back education in its stride, and that they don't have to feel so anxious, so worried. Any appeal from the government so far addressing children and their concerns. But we do find some exceptions, and that I think is some cause for worry as well. We do find some announcements of policies that are being made here. We have, as you see, the new education policy of 2020. Many have appreciated the good points in it, but I must tell you that for those who are concerned about children's rights, who have fought for children's rights, who battled for children's right to education, it has been a very disappointing document. It has not actually strengthened the Right to Education Act. In fact, it has diluted the RT Act and its obligation towards children. It has very little to do with सब लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण को सारी जमीन दिल्ली की डीडीए के पास है।
बराबर। तो क्या हुआ, हम लोगों ने पिछले साल बोला कि डीडीए का सबसे ज्यादा जमीन है ना वो अमीरों के लिए है। नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ 6 साल ही हुए होंगे दिल्ली में आए हुए, उनके पास इतना बड़ा घर है। हम लोगों को तो 35, 40, 50, 60 वर्ष हो गए हैं दिल्ली में। हाँ, मोदी 6 साल रह के लाया कहाँ पे? वही तो हमारा पैसा। बिल्कुल आज, बिल्कुल, और आज राजपथ में इतना बड़ा बंगला उन्होंने खड़ा कर लिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो लड़ाई बिल्कुल उनके पास कौन सा प्रूफ है? वो लिखित में दे दे उनका बाप का नाम क्या है और वो कहाँ से लाया। उनके पास तो डिग्री भी नहीं। हमें तो पूछ रहे हैं क्या लिया राशि? हम तो लाएंगे, आपके पास है वो दिखाओ ना पहले, तो हम बाद में दिखाएंगे। आप दिखाओ, देश का हो तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो केले का पत्ते में लिख के दे दे, पुराना कागज है किसी के पास, वो तो पूरे वो हो जाता, मट्टी मट्टी है। उनके पास है, उनसे पूछो ना क्या तुम्हारे पास क्या है, केले का पत्ते में लिख के दे दे। वो तो गरीब दुखी को ऐसे ही कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे एनआरसी मांग रहे हैं। जो एनआरसी नहीं हो कहाँ जाएंगे भाई? पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? है देश का, उसका बाप का है, देश सारे भारत का है, सभी का है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो सिखाई हो, जो जिसका भी हो, सबका देश है। तो हमारे पास तो बतेरा एनआरसी है, हमसे ले ले। पहले उनका दिखाए एनआरसी, तब पब्लिक दिखाएंगे उनको हम एनआरसी। आपने बिल्कुल सही बात बोली, उनको बिना कागज बनाए उनको मिल गया बंगला राजपथ। और हमारे पास है कुछ, हमें नहीं मिला बंगला, हम तो पूरे में पड़े हैं। उनको मिल गया है ना, तो हमने लड़ाई लड़ी। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, मैं आपसे 100% आपसे और पूरी आवाम को भी होना चाहिए यही कि आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लड़ाई यही हुई थी कि आप जिस हिसाब से दिल्ली में विस्थापन कर देते हो, लोगों को उनके घर से बाहर निकाल देते हो, आपके पास कौन से कागज है? तो ये पूरी लड़ाई हुई है ना। तो वहाँ पे जो डीडीए का जो कमिश्नर होता है ना, वो बैठा हुआ था हमारे सामने, बोलता है कि इसको क्या देना है, हम क्यों दे, ये लोगों को चाहिए नहीं कुछ भी, ऐसे ऐसे बोलने लग गया। हमने उसको बोला आपके घर में काम करने कौन आता है? गरीबी जाते हैं। उसने कहा कि आती है हमारे घर में काम करने के। अच्छा ठीक है। सफाई कौन करता है? उसके लिए भी एक आते हैं। ठीक है। आपकी गाड़ी कौन चलाता है? ड्राइवर आता है। बिल्डिंग कौन बनाता है? सारी गरीबी बनाते हैं, गरीब बिना तो कुछ काम ही नहीं है। कूड़ा कौन उठाता है? गरीबी बनाते हैं। तो वो कमिश्नर बोलता है हाँ मतलब सब कुछ तो वो लोग करते हैं। तो उसको बिल्कुल, तो उसको भी ये समझ नहीं थी कि जब सारा काम ये लोग करते हैं, हम जैसा गरीब वर्ग का इंसान करता है, औरत महिलाएं करती हैं, तो सारा जो भलाई का जितना भी बेनिफिट है, जितना भी उनको सुख सुविधा है, वो सब बड़े बड़े अमीर लोगों को क्यों मिलते हैं जब काम हम लोग करते हैं? गरीब को क्यों नहीं मिलता है ना? बराबर बिल्कुल। मजदूर करते हैं, रात को आके भूखा जो भी नसीब में खाते हैं, अगर उन लोग को क्यों नहीं सुख मिलती? बिल्कुल यही बात रखी, उसको समझ में भी आया, 2 मिनट के लिए समझ में आया, फिर से भूल गया, है ना? तो यही होता है। और ऐसा नहीं होता कि मैं चली गई, अमृता जी चले गए, हम 2-4 लोग चले गए, नहीं। डीडीए में जब तक 50,000, 1 लाख, दिल्ली की आबादी है 2 करोड़, है ना? 2 करोड़ का मालूम, अगर 2 लाख भी नहीं बातें रख पाते हैं ना अपनी, उनको समझ में आती नहीं है। जितनी आवाम होगी उतनी बातें उनको समझ में आती है ना? जो लागत दी
तो मतलब हमको ये तो पता है कि हमारी लड़ाई बड़ी क्लियर है कि हमारी लड़ाई ये है कि हमको ये चाहिए, है ना? बिल्कुल। और हमारे पास देखो ये भी है कि हमारे पास सहयोग करने के लिए लोग भी हैं हमारे साथ, है ना? कि संस्थाओं के लोग हैं हमारे साथ हमारी सहायता करने के लिए। हमें कुछ चाहिए, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये लोग है ना हमारे साथ, है ना? तो ऐसा है कि सरकार के साथ तो जैसे अमृता जी ने भी बोला ना कि आपस में तो हमें काम करना होगा, एक दूसरे के साथ बातें करना, बताना, अपनी कोई बहन है जिनको नहीं पता है उनको बताना, ये सब काम जरूरी है, पर सरकार के साथ भी बहुत जरूरी है काम करना। राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, गलती है उनकी, अपनी भरपाई करेंगे वो गलती की। राशन कार्ड हमारा हक है ना? बच्चों का स्कूल जाना हमारा हक है। 3 साल होगा राशन कार्ड बन के नहीं आ रहा, पेपर तो दे देते हैं लोग। चलो जाओ, पेंटिंग में पड़ा है, उसमें पड़ा है, पेंटिंग में पड़ा है। इतना परेशान है राशन कार्ड से हम। राशन जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा उसको नहीं मिल रहा। इतने परेशान है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, कितनी बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल सही बोल रही है हमारी बहन। अच्छा आपको एक बात बताइए, आप सब लोग 3 साल हो गए राशन कार्ड को, वो पेपर ले जाते तो वो लोग फेंक देते, कोर्ट वाले फेंक देते, पेंशन में पड़े, ये पड़े, वो पड़े। अभी आप क्या करोगे? अभी बताओ आप क्या करोगे अभी? राशन कार्ड है ना? आप खुद का भी बनवाओगे, जिनका नहीं बना है उनको भी बोलोगे बनवाओ, है ना? आज सीमापुरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे कूड़ा चुनने वाले वेस्ट पिकर्स, रैग पिकर्स के बीच में आज एक महिला दिवस का आयोजन हुआ। इसमें आज तमाम मुद्दों पे, खास करके राशन के मसले पे, बच्चों की शिक्षा के मसले पे और भी जो दूसरी सुविधाएं हैं उस पे महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। और लगातार आप देख सकेंगे और उसको हम दिखाना भी चाहेंगे कि कैसे यहाँ एक बड़ा मतलब विक्षोभ है लोगों के बीच में। और चूंकि अभी फिलहाल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है और एमसीडी चुनाव से पूर्व जो आम लोग हैं, खास करके जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, जो छोटे मोटे धंधे में हैं, उनकी क्या स्थिति है, यहाँ आने के बाद आपको सहज महसूस हो जाएगा। लगातार महिलाओं का जो जोश था, गुस्सा था सरकार के प्रति, और खास करके अभी भी एनआरसी का जो मुद्दा है उसको लेके इस कम्युनिटी में एक जबरदस्त गुस्सा है। और अधिकांश जो कूड़ा चुनने वाला समुदाय है वो या तो बिहार का है, या पश्चिम बंगाल का है, या झारखंड का है। अधिकांश बांग्ला भाषी जुबान बोलने वाले लोग हैं और आपको वो एक बांग्ला कल्चर आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो इस आज के इस कार्यक्रम में ये देखा कि जो वक्ता थे, वक्ता से ज़्यादा महिलाओं ने मोर्चा संभाला। और वो महिलाएं जो एकदम पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो महिलाएं जो सुबह से लेकर शाम तक खटती रहती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि 2 पैसा कमा सकें, उन सबके लिए लगातार वो काम करती रहती हैं।
लेकिन आज उनके जो कूड़ा चुनने का जो सवाल है, कूड़ा चुनने का जो एक जो क्षेत्रफल था, वो भी धीरे धीरे सिमट रहा है। और इसमें भी प्राइवेट संस्थान उतर गए हैं और कूड़ा के लिए भी बड़े बड़े घूस मांगे जाते हैं, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का। यहाँ लोगों ने बताया कि वो जो मशीनें आ गई हैं जो कूड़े को क्रश करती हैं, दबाती हैं, और दबा के और उनको या तो किसी लैंडफिल में या किसी और दूसरे प्रयोग में वो उस कूड़े का प्रयोग होता है। इस बीच जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेटेलिक चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, धातुएं हैं, वो सारी की सारी पहले लोग चुन लेते थे और खालिश कूड़ा जो है लैंडफिल में जाता था। अब वो भी चुनने का अधिकार भी वो भी ख़त्म किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे हैं, एक आजीविका का सवाल है, एक सर्वाइवल का सवाल है, एक डिग्निफाइड जीवन जीने का सवाल है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। इसके अलावा स्वास्थ्य है, राशन है, जहाँ हर जगह महिलाओं को, खास करके महिलाओं को जूझना पड़ता है। और इसके साथ साथ सीमापुरी में शासन प्रशासन की देख रेख में कहिए या उनकी नज़रों के नीचे मतलब दारू से लेके जो ड्रग्स हैं उनका भी खुला धंधा यहाँ चलता रहता है। लोग इससे भी परेशान हैं। तो आज नई सीमापुरी से जो महिलाओं का उत्साह जो दिखाई दिया है, जो गुस्सा दिखाई दिया है, उम्मीद है आने वाला यही गुस्सा, यही उत्साह, यही आक्रोश सरकारों को भी या सत्ता के जो पैरोकार हैं उनको भी सोचने के लिए मजबूर करेगा। आज का महिला दिवस पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो एक बराबरी, एक भाईचारा, एक बेहतर समाज की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 8 मार्च सीमापुरी का ये मोहल्ला है और ये मोहल्ला कूड़ा चुनने वाले या ये यूँ कहिए कि रैग पिकर्स, वेस्ट पिकर्स, उस मोहल्ले में आज एक प्रोग्राम है 8 मार्च पे, महिलाओं का प्रोग्राम, महिला दिवस पे। मैं यहीं से आज लाइव हूँ। इसके बाद हम पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे आपको।